Good evening to all of you. So, as we have continued from your last class, in last class of Materia Medica, we have studied Tarantula cubensis, and today we will study Tarantula hispania. लास्ट क्लास का लेक्चर सुन लिया है, मिला सुनने को? लास्ट क्लास का लेक्चर सुन लिया आप लोगों ने? टेरेंचुला क्यूबेंसिस में लास्ट क्लास में पढ़ा और उसका स्फीयर ऑफ एक्शन स्पेशली ऑन infections and skin, especially burning pain, pruritus, abscess, carbuncles. Now the constitutional aspect of tarantula. So today we will study Tarantula hispania. Tarantula hispania is one of the characteristic and very important remedy for the complaint constitutionally when needed tarantula. When tarantula is needed for constitutional complaint, it is more frequent to be prescribed Tarantula hispania rather than Tarantula cubensis. लास्ट क्लास में हमने बताया था कि इसकी पैथोलॉजी बहुत हद तक एक दूसरे के साथ मिक्सअप रहती है। बहुत सारे केसेस में देखोगे, बहुत सारे मेट्रिया मेडिका में देखोगे, दोनों को एक साथ ही लिखा हुआ रहता है। इवन अगर आपके पास एमएल टाइलर है, वहां देखोगे आपको टेरेंचुला हिस्पेनिया एंड क्यूबेंसिस दोनों एक साथ ही लिखा हुआ मिलेगा। क्यूबेंसिस को अगर पढ़ा दिया है जो लास्ट क्लास में, देन यू कैन differentiate between these two, and today what is more required in case of tarantula hispania that we are going to discuss. tarantula hispania को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इसके मैथोलॉजिकल और रीजनल यूज के साथ इसका जुड़ा हुआ है, और वो इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। एंड दैट tarantula is associated with the word tarantism. Tarantism is called a maniac dance. It is not a dance just like a dance. Rather, it is a maniac dance that especially people suffer from when it is being bitten by this tarantula spider. This dance is such an extreme, exhaustive dance that जो लोग सामने खड़े हुए हैं ये उनके लिए मजा नहीं, उनके लिए डर का सबब बन जाता है। इतने एक्सट्रीम, इतने एग्जॉशन में उसका डांस होता है, इतना अननोटिस्ड, अनकेयर फॉर द सराउंडिंग्स, एंड इतना एग्जॉस्टिव डांस होता है दैट इट इज बेटर टू बी कॉल्ड एज ए मैनियाक डांस। जो इसका नाम टेरेंटिज्म है, जो टेरेंचुला के काटने के बाद होता है स्पेशली, एंड इसको बहुत हर जगह पे लिखोगे, लिखा हुआ मिलेगा। इट इज रिलीव्ड बाय म्यूजिक। when along with music it goes into an extreme of rhythm, then patient goes into extreme of sweat, then frustration, and then leads to sleep, और फिर वो शांत होता है। and once it is bitten by this, such person especially every year at that time goes into the extreme and sensation of such tarantism and pain। और ये दोनों सिम्टम्स टेरेंचुला के क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है, जिसमें वन इज कॉल्ड दिस डांसिंग एंड एनुअल periodical return of nervous complaint, pain and choric complaint। सो ये वो सिम्टम है टेरेंचुला का जो टेरेंचुला के हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, और ये दोनों सिम्टम्स क्लिनिकली भी प्रूव्ड है। सो ये सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम बन जाता है टेरेंचुला की। नेक्स्ट कम्स टू tarantula। tarantula is for nowadays
one of the very important medicine for different sorts of mental disorders, different sorts of behavioral disorders. What you are calling nowadays that ADHD, tarantula is one of the very important medicine for such condition. What you call personality disorder, nowadays tarantula is a very important remedy for that. What you call very extreme changeability of mood, tarantula is one of the very important medicine. If you just want to, in short, note down few of the characteristic of tarantula, the most important aspect in that, tarantula is described first by just one word, and that is called foxy cunning. Foxy cunning is one of the characteristic of tarantula description. And this foxy cunning is one of the constitutional disposition of that tarantula. Foxy cunning समझ में आता है किसको कहते हैं? एनीवन? थोड़ा बहुत लोमड़ी, जिस चालाक बहुत हद लोमड़ी। तक हम लोग जो कहते हैं ना कि लोमड़ी की तरह चालाक है, क्या मतलब होता है इसका एक्चुअली? बहुत हद तक हम एक दूसरे को कभी कभी इस एडजेक्टिव से डिनोट भी करते हैं। तो लोमड़ी की तरह चालाक, अब लोग यूज तो बहुत करते हैं, लेकिन इसको समझेंगे कैसे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे? ये अगर हम बच्चों की बात करें तो ये वो बच्चे होते हैं जो क्लास में टीचर के सामने सबसे ज्यादा शरीफ होते हैं, और ये वो बच्चे होते हैं जो क्लास में सबसे ज्यादा शरारत करते हैं, और इनके सारे शरारत का भुगतान इनके दोस्तों को करना पड़ता है, और ये सबसे ज्यादा रोल मॉडल शरीफ बच्चे होते हैं। ये टीचर फेवरेट भी होते हैं, और क्लास में जितनी नुकसान हुई होती हो ये सब इनकी वजह से ही हुआ होता है। घर में मोहल्ले में अगर दो चार लोग हैं तो ये सबसे शरीफ होते हैं, लेकिन सारा कुकर्म करते यही है। ऐसा एक दोस्त हो जाए तो आपके लिए दो 10-20 दुश्मन की जरूरत जो है वो इसको निपटारा कर देता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन बॉर्न दिस रेमेडी इज कॉल्ड, देखोगे एक वर्ड लिखा हुआ है इसके फेवर में आपको, आई थिंक मटेरियल में कई जगह पे, मिस्चीवियस एंड डिस्ट्रक्टिव। अब इसके कॉम्बिनेशन को देखोगे, मिस्चीवियस, डिस्ट्रक्टिव और फॉक्सी कनिंग, इतना डेडली कॉम्बिनेशन है ये कि एक पर्सन बाय नेचर मिस्चीवियस है, एक पर्सन बाय नेचर डिस्ट्रक्टिव है, और एक पर्सन बाय नेचर कनिंग है। मतलब आपको इसकी वो सारी चीजें, इसकी सारी बुराइयां नजर ही नहीं आएगी, और ये अपना काम करता रहेगा। he will do every sort of things for its own pleasure, for the destruction of others, and still he will be very affectionate and very friendly to you. Such persons may be very good actors. Such persons may be very good politicians. Such person has a very strong quality to be the favorite of the mass, and you will not be able to identify that what he is doing in the name of good to you, but actually in long term it is very dangerous and harmful to you. This remedy is very frequently required in childhood as well as in the
latter stages of the life. But in childhood, we very frequently match this remedy with abrotenum in its this sort of mischievous and destructive nature. But फर्क ये होता है कि abrotenum is very easily identified for being mischievous and destructive. But tarantula will be always be in a good state of its appearance with doing all sorts of mischievous activities. Tarantula is sometimes missed or miscalculated with nitric acid, being destructive, being revengeful, but still nitric acid will be faced by a direct opposition. मतलब दुश्मन है, बदला लेगा, बट आप सामने से आइडेंटिफाई कर सकोगे. बट tarantula, you will not be identify it from the front. तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर टेरेंचुला से बचना है तो आप आपने आस्तीन कटवा के रखिए, क्योंकि नेचर में है तो ये बिच्छू, लेकिन इसको कहा जाता है आस्तीन का सांप. ये आस्तीन में बैठा होगा. आस्तीन समझ में आता है आप लोगों को? और कब डसेगा इसका पता भी नहीं चलेगा आपका, लेकिन आप इसको हमेशा हाय हेलो ही करते रहोगे. सच ए स्ट्रॉन्ग इनबॉर्न क्वालिटी ऑफ टेरेंचुला. एक बड़ा अच्छा इसका सिम्टम है. इसको आज के दौर में very frequently in many sorts of hyperactive children with mental disorders of all sorts, you will get tarantula if it is properly indicated, and it is very frequently indicated in many of such complaints. So एक तो ये ट्रायो याद रखना, foxy cunning, mischievous, destructive. मतलब mischievous, destructive, but ऊपर से बिल्कुल in a different humble docile state. The next important correction, अभी एक symptom बता रहे हैं, उसके बाद अब इसके बाद आपको, is a highly restless remedy, mental and physical both. It is a highly restless remedy. Highly restless कहने का मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर इसको आप किसी वजह से 2 घंटे एक प्लेस पे एक जगह पे बैठा के रख देते हो किसी कंपल्सन में, अव्वल तो रह नहीं पाएगा ये, लेकिन अगर आप रख देते हो तो इससे बड़ा पनिशमेंट नहीं होगा इसके लिए. एंड सो इट इज, आपके दौर में फिर यहाँ पे कहेंगे कि ये अपने आप में एक आज के दौर में जो हाईली एक्टिव हाइपर एक्टिव चिल्ड्रंस, वन ऑफ द फेवरेट रेमेडी फॉर दिस, जो आज के दौर में उभर के आता है. सच एंड हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन के घर में अगर मम्मी पापा दादा दादी नाना चाचा सब लोग एक साथ भी रह रहे हैं तो इस एक बच्चे को संभालना सबके बस की बात नहीं होती. और ये एक बच्चा अकेला अपने आप में काफी रहता है सबको अपने टोज पे खड़े होने के लिए दिन भर रात भर. कब कहाँ क्या करके आ जाएगा कोई पता नहीं. कब देखो किचन में दाल में नमक, नमक में चीनी, चीनी में वो मिल जाएगा और बैठा रहेगा. आप बस वो जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, वो ध्यान हटा और दुर्घटना घटा, is such a type of child. Such type of child, if it is in your family, then it is one of the greatest, you can say, a punishment to you to be on the toes for 24 hours. Even बहुत सारे जगहों पे
ये सुनने को मिला है कि अगर वो सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली में लोग रहते हैं तो पेरेंट्स यूज टू टाई चेन इन द फीट ऑफ दिस चिल्ड्रन इवन विथ शॉर्टर चेन। चेन भी ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये दो तीन जगह पे तो अपना कारनामा करता ही रहेगा। और फिर मम्मी घर में दूसरा काम करेगी। घर पे पेरेंट्स अकेले हैं, फादर ऑफिस चला गया, मम्मी बाथरूम में गई, बच्चा घर में बैठा है, बाहर से बाथरूम का कुंडी लगा देगा। अब अंदर से आप चिल्लाओगे, अब बाहर से ये बैठ के रोता रहेगा और इतना जोर से रोएगा कि आपको लगेगा कि अब क्या हो गया, ये कितना परेशान हो रहा है। बट कुंडी लगाया खुद ही है जानबूझ के। माहौल क्रिएट हो गया है, रो रहा है, मजे में है, लेकिन एनी हाउ किसी वजह से आप अगर दरवाजा तोड़ के बाहर आ भी गए तो इसको इस तरह से बेहताश रोता देखोगे कि आप डांटोगे नहीं, बोलोगे बच्चा डर गया था, गले लगाओगे बैठ के। सो स्मार्ट, इट विल गेट सिंपैथी rather than scolding and abuse। घर में आपको कौन सी चीज से सबसे ज्यादा लगाव है, जिस दिन वो पता चल गया और इसको थोड़ी सी भी किसी तरह का कोई आप डिसप्लेजर आपकी तरफ से मिला तो सबसे पहले वही चीज टूटा हुआ मिलेगा। और ये इतना इनोसेंट हो के आपके आके कहेगा कि देखिए कैसे टूट गया, किसी ने तोड़ दिया है, लगता है सुबह काम वाली दीदी आई थी उसने गिरा दिया होगा। दो चार ऑप्शन तो इसके पास होता ही है कि लगता है उसने गिरा दिया होगा, इसने गिरा दिया होगा। सबसे मजे की बात क्या होती है कि अगर घर में दो तीन भाई बहन हैं और एक इसमें से ये है तो फिर बाकी का खैर नहीं है बेचारे का। क्योंकि घर में जितनी भी चीजें नष्ट हो रही है उसका जिम्मेदार इसके अलावा बाकी सब है। जितनी भी गलतियां हो रही हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इसके अलावा बाकी सब है। अब एक सेंटेंस आपको दिखाते हैं, देखो बोरिक में सबसे पहले मेंटल सिम्टम जहां लिखा हुआ है वहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पढ़ो सबसे पहला सेंटेंस बोरिक का। Remarkable nervous phenomena, hysteria with chlorosis, और chorea, dysmenorrhea, spinal irritability, bladder tenesmus, constrictive sensation, formication, extreme restlessness, must नहीं, keep it. चेंजेबिलिटी ऑफ मूड नहीं लिखा हुआ है। Hmm, नहीं, 7 किलोमीटर नहीं सर, सडन ऑल्टरेशन ऑफ मूड, ये माइंड में लिख हाँ रहा है। हाँ, तो माइंड ही तो माइंड बोला में, था। सॉरी मैं स, इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी। नहीं नहीं, माइंड सडन वाला सडन सडन अल्टरेशन ऑल्टरेशन ऑफ ऑफ मूड। मूड। ये सडन अल्टरेशन ऑफ मूड, बाकी चेंजेबिलिटी ऑफ मूड से पता क्या डिफरेंस है। एंड दिस इज अगेन व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप इस सिम्टम को, इस पर्सनालिटी को मिला के और फिर साइकोलॉजी साइकेट्री के साथ पढ़ो, चाइल्ड साइकेट्री के साथ, देन यू विल फाइंड अगेन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और ये जो सडन चेंज देख रहे हो ना, बोरिक में ही एक रेमेडी खोलो, क्रोकस सटाइवा है, एक निकालो उसको, उसका मेंटल पढ़ना। वैसिलेटिंग, मतलब वो फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन रहता है। फ्लक्चुएशन, माइंड में क्या फ्लक्चुएशन होगा। सर थॉट्स फ्लक्चुएट, मूड एंड थॉट्स। हाँ, इस ये दोनों ही, अब आप इसका एक नोट्स बना के चाहो तो लिख लो, बहुत काम आएगा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और इस दोनों रेमेडी के लिए बहुत करेक्टरिस्टिक भी है, ताकि लोग जो सुन रहे हो अपने नोटबुक पे एक सिम्टम, एक छोटा सा एक कंडीशंस बता रहे हैं उसको नोट कर लो।
ये जो सिम्टम्स अभी ये दोनों आपको दिखाया है, ये इसका एक इंटरप्रिटेशन है, एक इसका प्रैक्टिकली पेशेंट में कैसे मिलेगा उसका एक पहचान का तरीका आपको बता रहे हैं। मैटेरिया में सिम्टम तो पढ़ लोगे, रेमेडी पेशेंट में पहचानना ये जरूरी है। एक बच्चा अभी देखोगे किसी बात पे इतना वायलेंट हो जाएगा, ये चीज चाहिए, ये बिगड़ गया, गुस्सा अभी लगेगा कि घर तोड़ देगा, सर फोड़ देगा, ये पटक दिया, वो पटक दिया। आप सामने में आ गए एंड यू फेस्ड इट very strongly. The next moment, the people, the child will goes into crying and apologizing. Sorry, हमसे गलती हो गई। एक पल लगेगा उस एंगर, उस एग्जॉशन, उस डिस्ट्रक्शन, उस मूड में आके, और उसके बाद आके बिल्कुल ऐसे गले मिलेगा, आपको पप्पी करेगा, किस करेगा, गलती हो गई, सॉरी हो गई, माफ कर दो। ये दोनों क्रोकस में भी और इस टेरेंचुला में भी, ये किसिंग, लविंग, दीज आर इवन एनी प्लेस, एनी वन, he or she will go for the kissing, go for the hugging, go for this apologizing at any moment. मतलब आप देखोगे कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अभी जो ज्वालामुखी की तरह जो गर्म लावा निकल रहा था, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सुनामी में बदल गया। दिस एक्सट्रीम चेंजेबिलिटी of mind from aggression to sudden go on weeping and apologizing with sorry, hugging, and so soft, sudden is one of the very strong characteristic symptom of this tarantula and crocus sativa. और इस सिम्टम को याद रख लेना, जब कहीं किसी में मिले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। क्रोकस सटाइवा का ये वाला सिम्टम अभी कुछ महीनों पहले अभी कलकत्ता विजिट हुआ था, एक केस के सिलसिले में सारे डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने एक बच्चे को प्रिस्क्राइब किया था, और वो भी विथ सम वेरी ऑब्स्टिनेट टाइप ऑफ डिजीज, और वहां पे उन्होंने क्रोकस सटाइवा का ये सिम्टम एक्सप्लेन किया था। कभी कभी क्या होता है कि खुद से लाख पढ़ लो तो वो पढ़ा आया और गया चला जाता है, बट वही एक बार अगर कोई टीचर एक्सप्लेन कर दे तो बाकी सारा सिम्टम भूल जाओ, बट वो सिम्टम बैठ जाता है दिमाग में फॉर एवर। एंड नाम सुनने से लगता है क्रोकस सटाइवा, हम लोग इसको कहीं और ही समझते हैं, कहीं और ही यूज करते हैं, बट दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ सच टीचर and his understanding and grasp on the remedy, and this is actually called what we say a concomitant prescribing। और ये टेरेंचुला और क्रोकस सटाइवा दोनों ही के अंदर एक बहुत एक्सट्रीम, यू कैन से बहुत ओवर्ट सेक्सुअल एक्साइटेशन मिलता है, और ये दोनों ही बहुत एक्सट्रीम रेमेडी माना जाता है। देखो दोनों के अंदर में देखोगे, वो किसिंग एवरीवन इज अ वेरी फ्रीक्वेंट फेनोमेना फॉर दी बोथ दीज रेमेडी। खैर ये सिमिलरिटी है, इसको यूज कर लेना, इसके डिफरेंसेस भी मिलेंगे। सो अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो पहला सेंटेंस आपको दिखाया टेरेंचुला के अंदर, सडन अल्टरेशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम, जिसको आप यही समझ लो, एक तरफ अभी ज्वालामुखी का लावा निकल रहा हो और तुरंत फिर समंदर की तरफ पानी, सुनामी की तरफ पानी का बहाव आना शुरू हो गया। कोल्ड सॉफ्ट, मतलब आपको एक्शन लेने का, आपको पनिशमेंट करने का, आपको स्कोल्ड करने का मौका नहीं मिलेगा।
एंड आप तुरंत पिघल जाओगे उसको कंसोल करने में। अभी अभी इतना कुछ कर रहा था, इससे पहले कि आप कुछ कदम उठाइए मारने के लिए, और आप जब वहां पहुंचेंगे तो आप उसको फिर समझाने में लग जाओगे, उसको कंसोल करने में लग जाओगे। दिस इज अगेन ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरेंचुला। टेरेंचुला के बारे में एक जगह एक वर्ड लिखा हुआ देखोगे, हिस्टेरो एपिलेप्सी। नाम सुना है इस वर्ड का, हिस्टेरो एपिलेप्सी? सर वो फेक करते हैं अपना बीमारी, मतलब कोई ऐसा कॉज नहीं होता पर उसकी वजह से दे विल फेक कि उनको फिक्स है या कोई इलनेस। हाँ, और ये वाली बात के साथ एक और चीज याद रख लेना, टेरेंचुला एंड वेरेट्रम एल्बम, अच्छे से याद रखना, ये दो रेमेडी, ये मेट्रिया मेडिका का ये दो वैसा रेमेडी है जो अगर आपका दोस्त बन गया तो फिर आप समझ लेना आपका क्या होगा। And this Veratrum album and Tarantula is one of the greatest fener of your Materia Medica. Feigning disease. These two are greatest fener in your Materia Medica. अभी केंट रिपर्टरी है सामने में, उसमें देखो एक रूब्रिक निकालो, माइंड में निकालो, डीफनेस है। हेलो? यस सर। यस सर, मैंने पहली बार देखा ये रूब्रिक माइंड में। डेफनेस प्रिटेंडेड सिंगल जी। रेमेडी विलायरम। अरे बाप रे। ये तो कभी नहीं देखा था सर। मैं सर हैरान होगी, मैंने कहा डेफनेस माइंड में कहाँ दिखा रहे हैं सर। हाँ, बस यही तो होता है, हम लोग ऑर्गेनल वाले रिपर्टरी कम जानते हैं थोड़ा सा। अब वहां पे आप टेरेंचुला भी लिख लो साथ में। अब बोलोगे नहीं क्यों लिखूं? कोई फेक करते इनलेस दोनों फेक। अच्छा आ, किसी बुक में है, कौन सी? क्लास में दे रखा है। हाँ, क्लर्क में इंग्लिश। भी है। अभी आपके सामने एमिल टाइलर है, यस सर है। एमिल टाइलर खोलो, टेरेंचुला खोलो, आई थिंक सेकंड पेज पे यस सर। देखो, मिला? ट्रेनिंग सिकनेस करके लिखा होगा, सेकंड पेज पे देखो, आई थिंक जहां से रेमेडी शुरू होता है तो थर्ड अच्छा या फोर्थ अच्छा। पैराग्राफ होगा। ओके सर ओके। सर पहली लाइन है, सी फेंसिक एज द रिपेटरी हैज इट। हाँ, पहली लाइन, सेकंड पेज। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। और अब आप अपने उस रिपर्टरी में जहाँ वेरेट्रम लिखा हुआ है वहां जाके इसको लिख लीजिए। अभी तो डिफनेस देखा है ना, अब उसी रिपर्टरी में ब्लाइंडनेस खोलना, मिला? यस सर प्रिटेंडेड विराटरम। देख लो, अब ये क्या क्या माइंड में दिया हुआ है, देखो, ब्लाइंडनेस माइंड में है, डिफनेस माइंड में है, और दोनों जगह वेरेट्रम बैठा हुआ है। अकेला बैठा हुआ है, आज आपने उसका एक साथी तैयार कर दिया, वेरेट्रम के साथ टेरेंचुला। सो अगेन, here it is hysterical, here it is cunningness, here it is destructive, feigning, all sorts of things you will find in case of tarantula. ये जो बता रहे थे आपको हिस्टेरो एपिलेप्टिक, अब इसको समझने के लिए आपको पहले एक बार आप एलेंस की नोट में एंटिम क्रूड खोलो, अपना एमिल टाइलर अभी खुला ही रखना, एंटिम क्रूड खोलो एलेंस की नोट में, वहां देखो, अगर एंटिम क्रूड बच्चे को देखोगे तो कैसा रिएक्ट करता है वो। वो टच नहीं करने देता खुद को। टच तो दूर और की बात है, अभी तो हम सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं। but it cannot bear to be touched or like that. Yes sir. मतलब आपको कहा जा सकता है कि वो इतना अच्छा रिमोट कंट्रोल बच्चा होता है, ऐसे हाँ देखोगे के शुरू हो जाएगा, ऐसे नजर हटाओगे चुप हो सर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बचाता है।
तो बस ऐसे देखोगे और के शुरू हो गया। एंड सिमिलर फीचर यू विल फाइंड इन केस ऑफ टेरेंचुला। आपने ऐसे देखा और उसका कुछ ना कुछ सिम्टम आना शुरू हो जाएगा। ये जो हिस्टेरिकल तो एक एस्पेक्ट है, ये तो बरों के अंदर या इस एस्पेक्ट के अंदर आपको मिलता है। और वहां पे देखो आपको कई सारे, अगर टाइलर में भी लिखा हुआ है बट एग्जैक्टली सेंटेंस नंबर अभी याद नहीं, आप ढूंढोगे, और क्लर्क में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जैसे ही बच्चे को आप देखोगे, क्लर्क डिक्शनरी में देखना, आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे, जब तक वो अननोटिस्ड है ठीक है, जहां नोटिस गया सिम्टम्स, एपिलेप्टिक कंडीशंस, कोरिक कंडीशंस आना शुरू हो जाएगा। और इसी को वो कहता है हिस्टेरो एपिलेप्टिक। एंड एपिलेप्टिक कोरिक कंडीशन, नर्व्स कंडीशंस के ऊपर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी ऑफ दिस टेरेंचुला इज, बट इसका एक स्पेशलिटी है ये हिस्टेरो एपिलेप्टिक। एक और बड़ा एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसके, माइंड का भी दो सिम्टम बताते हैं, चलो फिर उसके बाद बताते हैं। दूसरा इसके माइंड का एक बहुत पिकुलियर सिम्टम है, उस सिम्टम के ऊपर आई हैव प्रिस्क्राइब्ड मेनी a times in many different sorts of disease with good result। इस सिम्टम को लेके एक और चीज कहेंगे कि ये वो सिम्टम है जिसकी वजह से माँ बाप को बहुत जगहों पे बेइज्जत होना पड़ा है, स्पेशली इन आज के दौर में जो मॉल वाला मार्केटिंग सिस्टम है ना, वहां पे जब मॉल नहीं था तो बेइज्जती कम होती थी, सक्सेस बाद में घर पे आके पता चलता था। और वो सिम्टम क्या है पता? क्लेप्टोमेनिया। नाम सुना है क्लेप्टोमेनिया? चुराते हैं चीजें। हाँ, रोटी चुरा लिया इस वजह से नहीं कि भूख लगा हुआ है, यहाँ हम्म। चुराते हैं वो चीज जो इसके काम का भी नहीं है। यस। अब छोटो एक 3 साल 4 साल का बच्चा जाके एक मेंस परफ्यूम चुरा के रख लिया पॉकेट में, सामान खरीद के आप जब बाहर निकले, दरवाजे पे मॉल के वहां पे जो गेट पे टो 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 बजना शुरू हो गया। और जब बजना शुरू हो जाएगा तो अब सोच लो ये बच्चा कौन है? टेरेंचुला। ऐसे अनजान बन के देखेगा मम्मी पापा की तरफ कि गार्ड लगेगा कि आपने उसके पॉकेट में डाल दिया है कि लेके निकल ले। वो बिल्कुल अनजान, अच्छा ये कैसे आ गया मेरे पॉकेट में, पता ही नहीं था। एक दो बार के बाद आप समझ में आ जाओगे कि बच्चा, पहले आप निकलने से पहले इसको चेक करोगे कि बिफोर दैट के गार्ड विल चेक यू, यू विल चेक योर चाइल्ड। कहीं अंकल आंटी के घर पे गया है, नाश्ता पानी चल रहा है, अब वहां से अच्छा सा चम्मच, फॉग, कोई बर्तन, कोई खिलौना, घर पे आने के बाद आके दिखाएगा मम्मी देखो हमने ये लिया है। और इतनी सफाई से उठा के ले आएगा। और ये भी वो चीज नहीं कि जो इसके काम का है, जैसे छोटा बच्चा कहीं गया खिलौना देख के दूसरे का खिलौना जिद करता है, ये वो बात नहीं है। ये कुछ भी रैंडमली विम्सिकल, और इतने सफाई से, आप बहुत सारे हिंदी फिल्मों में देखा होगा ना कि हाथ मिलाया और घर ही आपका गायब। इतने सफाई से उठा के ले आएगा चीजों को। अच्छे खासे पैसे वाले घर का बच्चा है, 200 रुपए का सामान उठा के ले आ रहा है घर पे। एंड इट इज नॉट बाय एनी इंटेंशन। सबसे बड़ी बात यह है कि इट इज नॉट बाय एनी इंटेंशन, इट इज a whimsical act। और being whimsical is again one of the characteristic of this remedy also। Being whimsical, being abrupt is one of the characteristic of this remedy। So इस क्लेप्टोमेनिया को याद रखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर दिस रेमेडी। और इस क्लेप्टोमेनिया के ऊपर कई सारे इवन मतलब डिजीजेस लाइक डायबिटीज इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस रेमेडी। और ये क्लेप्टोमेनिया मतलब सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं है, ये मत समझना कि ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं।
हाँ, वो 70-80 साल का भी होगा तब भी अगर ये है तो ये सिम्टम तो है। और वैसे लोग के घर में कभी विजिट करने को मिलेगा तो आप आधे घंटे घर में बैठने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से शहर में कौन कौन से होटल में गया था, कहाँ कहाँ ठहरा था। सब जगह की निशानियां आपको मिलेगी वहां पे। कहीं का टॉवेल मिलेगा, कहीं का चम्मच मिलेगा, कहीं का क्रॉकरी मिलेगा, कहीं का कुछ फ्रेम मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सो दिस क्लेप्टोमेनिया, विम्सिकल स्टीलिंग, ऐसी चीजों को उठाना जो इसके काम का नहीं है, जो इसकी जरूरत का नहीं है, जो इसके इंटेंशन का नहीं है, एंड ही विल टेक इट अवे। एंड आफ्टर foxy cunningness, this kleptomania and restlessness is again a very important violent characteristic of this remedy. एक अभी अभी आपको हमने एब्रोटिनम और नाइट्रिक एसिड के साथ इसका डिफरेंस बताया, सिमिलरिटी। अब आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेमेडी के साथ इसका सिमिलरिटी बताने जा रहे हैं। अच्छा, ये क्लेप्टोमेनिया याद रखना, क्लेप्टोमेनिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट गेट्स एग्रावेटेड especially in case of female when she is in the time of menstruation. This kleptomania gets intense when she is at the time of menstruation. ये although otherwise भी है, but उस टाइम पे ये चीज और अनकंट्रोल्ड एक्सट्रीम हो जाता है. So better not to go anywhere outside during that period. This remedy is having a very strong resemblance with sepia, very strong resemblance with sepia. Sepia is another remedy that if you make the lady sit in one position for 2 to 3 hours, it will be a punishment for her. Restlessness, but टैरेंचुला के अंदर वो रेस्टलेसनेस बहुत हाइपर होता है. इन केस ऑफ सीपिया ये रेस्टलेसनेस लेसर होता है, बट स्टिल mentally and physically sepia is another very restless remedy. दूसरा, dancing ameliorates, you will find in case of sepia as well as in case of tarantula. Sepia is not so violent, but tarantula is violent. But both sepia and tarantula are very manipulative. To get their purpose, to get their work done, both these remedy have a strong capacity to manipulate you by any means. You will realize that you are being used, but तब तक बहुत देर हो चुका होता है. Both have this tendency. Sepia and tarantula are both the remedies which have a very strong reflex of symptoms in which the sphere and the center of symptom is female genitalia, uterus, ovaries, and genitals. Symptoms that has a basic and primary seat of the disturbance in female genitalia, especially of sexual sphere, disturbances that arises from this area. But the strong difference is that sepia have aversion to sex and tarantula is very extreme sexual desire. Even in female, it is more intense than male in case of tarantula. So with all the above similarities, this difference in sexual desire is one very important difference.
as well as this violent destructiveness is present in tarantula and it is absent in case of sepia. Both have extreme aversion to fatty foods. Both aggravates by cold. Both have extreme fluctuations of mood. And so in many a times we have picture of one remedy and we go into thinking about another remedy. And from now onwards, you can differentiate it. Both are, especially if the complaint is arising from the sexual organs. And if it is a case of a female, then many times we go towards sepia, but actually the case is of tarantula. और ये बहुत सिमिलर है. अब आप दोनों को मैच करके जरूर डिफरेंशिएट करना इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका, जो कुछ कुछ हद तक आप देखोगे कोनियम में भी है, कुछ कुछ हद तक आप देखोगे लाइकोपोडियम में भी है, एंड दैट इज कॉल्ड डिजायर टू बी अलोन. सीपिया के अंदर भी है, इसलिए बता रहे हैं. डिजायर टू बी अलोन येट फियर ऑफ बीइंग अलोन. डिजायर टू बी अलोन बट येट फियर टू बी अलोन. इसी तरीके का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप ऑफ सिम्टम है इसके अंदर. पेशेंट इज वेरी रेस्टलेस, wants to move and walk, but walking gets no relief. Patient is always in a hurry, there and there, restless, जैसा कि बताया, mental and physical, walking, but this restlessness is not relieve her or him. Periodicity बता दिया. अच्छा, इसके अंदर एक देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इरिटेशन ऑफ नर्व इंडिंग्स. और इसके वजह से इसके अंदर का दो बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, एक एट हेड और दूसरा है एट एक्सट्रीमिटीज. रेस्टलेसनेस हेयर देयर ही है. नर्व इंडिंग्स पे ये देखोगे, पैर के हाथ की उंगलियों पे एक अजीब सा चुनचुनाहट वाला पेन डेवलप होता है एंड पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली वांट्स टू रब. दिस पेशेंट नीड्स rubbing and massage all over the body, and to which you will misinterpret it as if phosphorus and silicea calcarea. And rubbing, यही rubbing इसको हेड के ऊपर देखोगे, कांस्टेंट रोलिंग. आप जैसे एक बड़ा अच्छा केस है टाइफाइड का, डॉक्टर मजूमदार का, वहां पे इस रेमेडी को इस हेड रबिंग के ऊपर यूज किया गया था. ये रोलिंग ऑफ द हेड आपको कई सारे रेमेडीज के अंदर मिलेगा, बट इसका जो रोलिंग ऑफ द हेड होता है वो स्पेशली सिर्फ सर को घुमाना नहीं, सर को रगड़ना होता है. और इस सिम्टम को देखने के लिए आपको फिर कहेंगे एक बार क्लर्क डिक्शनरी में, जहां पे वो कंपैरिजन सब रेमेडी का दिया हुआ है ना रिलेशनशिप में, उसके ऊपर चले जाओ, वहां पे देखना. एंड हेयर Clark has also given in close relationship with this remedy Calibrome. और लास्ट क्लास में जैसा कि हमने बताया था आपको, डॉक्टर NM चौधरी के किताब के रेफरेंस से, उसी में आपको हमने बताया था इस रेमेडी के अंदर भी लाइक कैलिब्रोम देयर इज a symptom that constantly playing with finger, कुछ ना कुछ शांत नहीं रहेगा, constantly playing with finger, doing this. इस रेमेडी में देखोगे जिंकम की तरह रेस्टलेसनेस ऑफ लेग इज वेरी प्रोमिनेंट, और कैलिब्रोम की तरह प्लेइंग विथ फिंगर इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट. सो दिस टेरेंचुला एक तो ओवरऑल रेस्टलेस ही है, हाथ और पैर भी बेकाबू है. एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, प्लेइंग विद दिस. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसी के साथ बताते हैं. एक वर्ड है साइनेल्जिया, नाम सुना हुआ है?
यस, किसी मटेरियल में ही पढ़ा था। इस क्लास में पढ़ा था। जी, मटेरिया में पढ़ा होगा तो टेरेंचुला में ही पढ़िएगा। Periodicity, remedy of synergias and concomitants. साइनेल्जिया का मतलब बोलते हैं, अगर हम इसको आपको याद रखने के लिए अच्छे से बताएं, कि आपको चोट लगे और मेरे दिल में दर्द हो, दिस इज कॉल्ड साइनेल्जिया। खैर, अब इसको उस तरह से रिलेट मत करना। कंप्लेन कहीं पे हो और दर्द कहीं पे हो, दिस इज कॉल्ड साइनेल्जिया। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। एक सिस्टम में कंप्लेन, दूसरे सिस्टम में इसका एक्सप्रेशन और दर्द हो रहा है। And this symptom is considered to be a very important concomitant phenomena for this remedy. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस साइनेल्जिया इज वेरी फ्रीक्वेंटली नॉट लाइक दैट, कि जिस तरह से आप चेलिडोनियम में पढ़ते हो कि गॉल ब्लैडर में पैथोलॉजी है और लेफ्ट राइट लोअर एंगल ऑफ स्कैपुला में दर्द हो रहा है, तो रेडिएटिंग पेन की तरह नहीं होता। रेफर्ड पेन, रेफर्ड पेन। रेफर्ड, तो हाँ हाँ। उस तरह से जरूरी नहीं है कि ये लिंक भी हो। मेंस्ट्रुअल पीरियड है, आंख में दर्द हो रहा है, डिस्मेनोरिया होना कहीं चाहिए, हो कहीं रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ दिस रेमेडी। तो यहाँ ये जो साइनल्जिया है, ये इसीलिए आपको चेलिडोनियम का एग्जांपल बताया कि आप उस रेफर्ड पेन को मत समझने लगना। कंप्लेन कहीं, पेन कहीं। इसको बहुत हद तक आप उससे भी रिलेट मत करना, जैसे कॉस्टिकम में खांसते हैं तो कमर में दर्द होता है, क्योंकि वहां पे वो रिलेशन ऑफ एक्सर्शन भी जरूरत नहीं है। बट स्टिल यू विल फेन कंप्लेन इन सम प्लेस। एक इसी से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका, याद रख लेना। ये सिम्टम मिलता तो बहुत कम है, लेकिन जब मिलेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेरेंचुला पेशेंट स्पेशली नहाने के टाइम, अगर आपका वॉशरूम और बाथरूम एक साथ नहीं है तो वो जल्दी नहाने नहीं जाता। आप बोलोगे इससे उसका क्या रिश्ता? जैसे ही पेशेंट सर पे पानी डालेगा, उसको जोर से स्टूल का अर्ज डेवलप होता है। पैर पे पानी डालते ही यूरिन आना ये तो बहुत मिलता है, लेकिन सर पे पानी डालते ही स्टूल का अर्ज आना, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस टेरेंचुला। याद रख लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्कोमिटेंट है। यूटेराइन पैथोलॉजी में स्पेशली विथ मैलिग्नेंसीज इसका यूज तो बहुत है, चाहे वो यूटेरस में ट्यूमर हो, यूटेरस में कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, चाहे वो ओवेरियन मैलिग्नेंसी हो, उसमें तो इसका बहुत यूज है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका, एंड दैट इज वेरी क्लिनिकली वेरीफाइड, एंड दैट इज कैंसर ऑफ टंग। एंड द कॉन्कोमिटेंट यू विल फाइंड beside all these mental symptom, वो तो है ही है। In case of cancer of tongue, you will find a concomitant of cystitis, voluptuous itching at genitals and cystitis in this remedy। और इसी कंप्लेन में इसी तरह के कॉन्कोमिटेंट के साथ एक और रेमेडी है, बताएगा कोई? चलो, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। अभी बोरिक है आपके सामने में रखा हुआ, हटा तो नहीं दिया? ये याद रख लेना, ये जो अभी दो तीन रेमेडी बताने जा रहे हैं, अगर इस तरह का केस मिला, then it is very useful। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है किसी ड्रग का, तो वो आएगा। और अगर ये वन साइडेड ऑफ द टाइप ऑफ डिजीज है, तो यहाँ ये तीन दवाई जो बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको बता दिया टेरेंचुला, दूसरा रेमेडी बोरिक खोलो, गैलियम एक रेमेडी है निकालना, गैलियम, GALIUM।
And in case of gallium also, you will find a hard tumor, cancerous growth on tongue with cystitis or urinary concomitant. This remedy is very important remedy for malignancy of tongue and malignancy of urinary organs. Yes, sir. Gallium heparin. So we frequently use, even sometimes with intercurrent use of constitutional remedy, gallium 6C in case of tumor of the tongue or malignancy of the tongue, hard knot tumor or malignancy. Or the third remedy is aurum mure. Aurum mure is another very important remedy for malignancy of the tongue. और जिस तरह से गैलियम और टेरेंचुला में ये सिस्टाइटिस और यूरिनरी कॉन्कोमिटेंट्स इंपॉर्टेंट है, ऑरम म्यूर के तरफ आप देखोगे वो ऑरम की पर्सनालिटी तो अलग है, एक लेदरी फीलिंग, लेदर लाइक फीलिंग Hmm. Yes, इज sir. वेरी इंपॉर्टेंट. तो काली साइनेटम भी तो है कैंसर ऑफ टंग में. नहीं, अभी तो दवाई तो बहुत है ऐसे, तो आप देखोगे फिर आप ऑरम में ही देखो, ऑरम आयोड भी बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होता है उसके अंदर. ऑरम म्यूर एक इनिशियल स्टेज में आपको एक इनसेंसिटिविटी, ये लेदरी फीलिंग ऑफ टंग में आप देखोगे, अगर किसी ने टूथ एक्सट्रैक्शन कराया हो और दांत निकालने से पहले जो कुछ एनेस्थीसिया वाला दिया जाता है इंजेक्शन, और उसके बाद देखोगे अगर किसी को हुआ है तो वो फील कर पाएगा जो एक सेंसेशन मिलता है टंग पे, सिमिलर टू दैट सेंसेशन से शुरू होता है इसके अंदर. ऑरम में एंड सर. ऑरम म्यूर. और एक लास्ट क्लिनिकल टिप्स ले लो, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रेन. आज के दौर में एक बहुत percentage or epidemiology of this disease is increasing, and that is type 1 diabetes. Diabetes in children. बोरिक मेट्रियामेडी का भी है सामने में, उसमें देखो एक रेमेडी है क्रेटियगस. आप सोचो हम लोग क्रेटेगस को हार्ट रेमेडी के लिए यूज करते हैं, वहां पे देखो डायबिटीज ऑफ चिल्ड्रन है लिखा हुआ, बोरिक में ही मिलेगा, देख लो. यस सर. यूरिनरी में है डायबिटीज स्पेशली इन चिल्ड्रन. अब जो क्लिनिकल टिप्स आपको बता रहे हैं वो नोट कर लेना. डायबिटीज ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली इन केस ऑफ hyperactive child with ADHD with diabetes who desires raw food with extreme aversion to slimy food, fat, meat. Use this remedy with great patience because diabetes, type 1 diabetes is a very difficult to cure. You need to wait even for years with prescription and you will get betterment in your patient. Chalo, thank you very much. Read Tarantula to yourself. If you have any doubt, we will discuss in next class. Thank you very much. पोटेंसी भी बता दीजिए. किसके लिए? इस डायबिटीज के लिए? डायबिटीज. इसमें हमने 30 पोटेंसी यूज किया है, और जब कभी इसका मेंटल सिम्टम के साथ अगर मिला है तो फिर हाई पोटेंसी दे के लॉन्ग वेट एंड वॉच. हाई पोटेंसी स्पेशली 10 2 डोज. इसको हमने एलएम में उतना यूज नहीं किया है हमने, तो या तो हमने 30 दिया है या फिर 10 दे के फिर वेट फॉर द मंथ. तो 30 एक देखिए दो नहीं,
30 जब दिया है तो 31/11 एटलीस्ट फॉर 10 days 15 days एंड देन प्लेसिबो. ओके सर, चलो. थैंक